morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 15, India Marches Ahead. Before that, we have read about the nationalist movement of our country, 1870 to 1947. We got independence in 1947, and it was after the Second World War. At that time, Clement Attlee was the British Prime Minister, and he felt that the people of India demanded for the independence, and it is a right decision to give them independence. So he and his parliament passed an act that is called Indian Independence Act 1947, and this act was based on Mountbatten Plan. Mountbatten was the Governor General of India at that time, वायसराय और गवर्नर जनरल वी कैन से. तो 1947 में जब ये एक्ट पास हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, एंड ही मेड दैट प्लान, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लान दिस एक्ट was made. Okay, and it was passed in 1947. According to this act, India got independence and it became a free country. But it also had a policy or a feature that India is divided into two parts, Pakistan and India. Okay, firstly, Indian leaders opposed that feature, but after that they had to agree over that to get the freedom, because Muslim League wanted that part as Pakistan. Muslim League demanded for Pakistan, and to maintain peace and order in our country, the political leaders and the political parties of our country agreed on that demand. Okay, so let's discuss about the Indian Independence Act 1947. The first feature was British rule ended with immediate effect. जैसे ही ये एक्ट पास होगा उसके साथ ही ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ओके, एंड इंडिया divided into two parts, Pakistan and India, and India became the independent dominion. एक independent country, एक independent area बन जाएगा वो, and it includes maximum British provinces, the areas that were under control of British government. ठीक है, वो सभी एरियाज इंडियन डोमिनियन के पार्ट बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल मद्रास प्रेसिडेंसी, कार्नेटिक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, एटसेट्रा. नाउ ईस्ट पंजाब and West Bengal, what it means? We have discussed before that Bengal was divided into two parts in 1905. The one part is known as East Bengal and the other one is West Bengal. So West Bengal came to our country. ठीक है, हमारे पोर्शन में वेस्ट बंगाल को डाल दिया गया, एंड द ईस्ट बंगाल became the part of Pakistan. And same with Punjab. Punjab was also divided into two parts, East Punjab and West Punjab. So East Punjab became the part of India, and West Punjab now it is in
Pakistan, we all know that. So the different part of our country divided between India and Pakistan. Okay, we have discussed about the parts of India कि इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी, कार्नेटिक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम इंक्लूड किए गए. और उसी के साथ पाकिस्तान में कौन से एरियाज थे? वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है गुजरात की तरफ से एरिया, वो पार्ट भी पाकिस्तान का पार्ट बना. सिंध एंड ईस्ट बंगाल, जो बंगाल का ईस्टर्न साइड का एरिया था, जो अब बांग्लादेश है, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम. वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, यानी कि उसे भी पाकिस्तान में ही इंक्लूड किया गया, ठीक है, जिसे अब हम बांग्लादेश बोलते हैं. ओके. प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन. हैदराबाद, जूनागढ़, इस तरह की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें फ्रीडम दिया गया दैट दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ द डोमिनियन, एनी ऑफ द कंट्री. Okay, whether they wanted to join India, they can join India, and if they wanted to join Pakistan, they can join the Pakistan. Okay, तो ये उन्हें फ्रीडम दिया गया. The dominion of India and Pakistan were granted complete freedom, and they became member of British Commonwealth. इसी के साथ इंडिया और पाकिस्तान को प्रॉपरली फ्रीडम गिवन किया, एंड नाउ दीज टू कंट्रीज बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ये दोनों फ्री कंट्रीज थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, बट स्टिल दे वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ओके, सो दीज आर द फीचर्स कि ये माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड था, और इसमें साथ ही इंडिया में इस जैसे ही ये प्लान जो एक्ट था वो पास हुआ, इसके साथ ही इंडिया में ब्रिटिश रूल एंड हो गया. इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. सम पार्ट्स बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया एंड द अदर गोज टू पाकिस्तान. ओके, और प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दिया गया कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं, और अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर मर्ज हो सकते हैं. ओके, एंड विद दैट इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रांटेड फुल फ्रीडम, proper freedom, and they became the member of British Commonwealth. Okay, so this is about Indian Independence Act 1947. This, the British rule ended in our country, but still there was the British person that was called Governor General of our country, Lord Mountbatten. He was the last viceroy and the first governor general of independent India. जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो ब्रिटिशर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड इट मीन्स ही वॉज द लास्ट वाइसराय. ठीक है, बट उसके बाद भी इंडिया में अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना था, एंड देयर वॉज नो हेड, सो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो रिमेंबर दैट कि लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसराय थे, बट इसके साथ ही फ्री इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे. ओके, एंड सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल. और अगर हम इंडिया का अपना गवर्नर जनरल पूछते हैं तो उसमें कौन है? सी राजगोपालचारी. ठीक है, सी राजगोपालचारी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ आवर कंट्री. ओके, इंडियन पर्सन जो गवर्नर जनरल बना था इंडिया का वो है सी राजगोपालचारी. वो फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने और लास्ट भी थे, क्योंकि उनके बाद फिर कोई गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं किया गया. ओके, और अगर ब्रिटिश वॉइसराय पूछा जाता है तो लास्ट ब्रिटिश वॉइसराय वाज लॉर्ड माउंटबेटन, एंड
first Governor General of Free India was Lord Mountbatten. The answer is same. Okay, so keep it in mind कि हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे. ओके, बट फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल बना वो था सी राजगोपालचारी थे. ओके, he was the first and last Indian to become a governor general. Clear? 560 princely states joined India. जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पर किंग्स का रूल था, दे ज्वाइंड इंडिया. ओके, विद देयर ओन विश, अपनी मर्जी से उन्होंने इंडिया को चूज किया एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, बट द स्टेट जूनागढ़ एंड हैदराबाद ज्वाइंड आफ्टर मिलिट्री एक्शन. हैदराबाद को भी बाद में इंडिया का पार्ट बनाया गया एंड जूनागढ़ ऑल्सो आफ्टर मिलिट्री एक्शन. मीन्स कि मिलिट्री को उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा. वहाँ पर पीस एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए मिलिट्री को आगे आना पड़ा एंड देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, एंड देयर वर सम अदर colonial states, those were still the part of French or पुर्तगीज और ब्रिटिश रूल. ऐसे भी स्टेट्स थी जो अभी भी फ्रेंच का एरिया था, उन पर फ्रेंच का कंट्रोल था या पुर्तगीज का कंट्रोल था. सो दे बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री अ लिटल आफ्टर. नाउ दीज वर द पुडुचेरी और पौंडीचेरी एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ फ्रेंच कंट्री. फ्रेंच का इस पर रूल था एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन 1954. इसे फ्रेंच से फ्री करवाया गया 1953 और 1954 में. इट मीन्स इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन 1954. विच एरिया? पौंडीचेरी, दैट इज कॉल्ड पुडुचेरी. ओके, नेक्स्ट इज गोवा. गोवा वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज. जो पुर्तगीज थे उनके कंट्रोल में था गोवा एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन 1961. 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बना. सिक्किम वॉज ऑल्सो अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स. सिक्किम को अभी भी ब्रिटिश प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और वो 1975 में इंडिया का पार्ट बनी. Okay, so these were the areas that became the part of our country after 1947. Again, we will revise it. Pondicherry was under French and it became the part of our country in 1954. And Goa was under Portuguese और 1961 में इंडिया का पार्ट बना. असम was the British area and it became the part of our country in 1975. Okay, so this is the map independent India and Pakistan जो 1947 में डिवाइड हुआ था. ये वो है. Let's see. Okay, so this is the India. जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है दैट इज द पाकिस्तान और जितना भी ऑरेंज पार्ट है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था एरिया और अब वो इंडिया का पार्ट बन चुका था. जम्मू कश्मीर एक फ्री प्रिंसली स्टेट था. हैदराबाद ऑल्सो फ्री प्रिंसली स्टेट. ओके, सो ये एरियाज थे जो बिल्कुल फ्री थे और जिनके ऊपर खुद पे डिपेंड करता था कि दे विच डोमिनियन दे चूज. ओके, and Goa was under Portuguese and Assam was a part of British rule and Puducherry was under French. Okay, so these are the areas और हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से था. Clear? Okay. Indian Constitution. Indian Constitution was formed with indirectly elected members of the Provisional Legislative Assembly. जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनके मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को चूज किया गया एंड दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, and its first session was held in 1946.
फर्स्टली इन्होंने जो मीटिंग की वो 1946 में की and reassembled in 14th August 1947 when India was divided into two parts. At that time it was reassembled. Firstly तो ये इंडिया एक सिंगल कंट्री था तो उसके लिए बनाई जा रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट 14th अगस्त 1947 में इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये भी रीअसेंबल किया गया। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई, एक जो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी एंड द अदर वन वाज द फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर टू कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्म किया गया एज द सोवेरियन कॉन्स्टिट्यूएंट assembly for the dominion of India. Okay, the constitution was passed on November 26. We have already that November 26 में ये पास हुआ था 1949 में, and it was adopted on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को ये adopt किया गया, and you have to tell me the reason. For that we have discussed in our last chapter कि हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया। ओके, नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर। सो इट टेक 2 years 11 months and 17 days, approximate 13 months, 2 years and 12 months, सॉरी, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने और 17 डेज ये यूज़ हुए थे। ओके, नियर अबाउट 3 years, 3 years को का टाइम लगा ये बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कंप्लीट ड्राफ्टिंग होने में, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड विद दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल became the Deputy Prime Minister of Free India. ओके, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, और इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन जो थे, द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1952। ओके, so this is about our constituent assembly and the formation of our constitution, that how many months it takes, how many years it takes to form the constitution, or who was the first president, first prime minister and first deputy prime minister. Okay, so read that properly and I hope you will enjoy that chapter. Thank you and have a nice day.